I've been asked academic question, so I'll have to be a little academic today. Forgive me. But it's a very vital question. Very vital question. Everybody's heart, I think, will resonate with the question. Why do good people suffer? And bad people continue to flourish? Isn't it a very vital question? You see, good and bad, your imagination. You imagine that you are a good person because of so and so reasons. Maybe because you're a vegetarian, maybe because you think you don't tell lies. You think you don't tell lies. You think that you don't steal. These things are all very relative. Very relative. This doesn't really make you good. Or somebody who's been caught stealing. Somebody's been caught stealing. Everybody. We blame our servant because उसने दूध पी लिया fridge में से. But ourselves, we are doing so much of corruptions, whatever we have in our hands. But उस बेचारी ने दूध पी लिया and she becomes a thief. Sort of मिठाई खा ली आपको बताए बिना and she becomes a thief. And then you start blaming. देखो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं. We never see ourselves, whatever wrongs we keep doing in life. हम कोशिश तो करते हैं, हम सोचते हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलते, और कितने झूठ बोलते हैं हम. अगर आप अपने आप को चेक करोगे तो सब कुछ सबसे हो रहा है. ये गुड एंड बैड इज योर इमेजिनेशन. Good people suffer, number one, because they imagine they are good. Number two, actually, they are stupid. Stupidity suffers. Stupidity means they actually don't know what is reality. What is stupidity? What is reality? And why don't they know? Because they have never tried to know. If you try to know, then there are scriptures, then there are gurus. Then you have to enroll into a university called Guru. By just having a guru, it's not the end of the game, because there are so many people who have gurus, but still they're suffering. If you joined a medical college, you fine, you have a guru, fine, but you don't take interest in your subjects. Joining a medical college will not make you a doctor. So to have a guru and to be equally interested in the subject called spirituality, then you would have no more questions left. Why do good people suffer? That's your imagination, what is good. And bad people flourish. What is this definition of flourish? If you wanted to make money and you call it flourishing, then you also make money. Who is stopping you? Money is what? Money is energy given a material form. The whole world is being run by energy, but in material form it's called money. What is wrong in it? You think not earning money, doing pure social work without money, you become good person. It's your imagination. To earn money is not a sin. Anybody who's rich, we think he must be a sinner. Because you are a stupid person who doesn't earn money, you think you are good. Anything you have imagined, this is good and this is bad. Well, the scriptures, the guru, the foundation is what? That I am suffering, everybody is suffering, everybody, not good or bad, everybody is suffering, and the way out of it is spirituality. If you truly become spiritual, you are beyond suffering. So, for this subject, if you want to learn French, you cannot learn it from the book.
You have to have a French-speaking person along with you. But, well, the French-speaking person will teach you French by and by, and you would know French. But this subject called spirituality, you require a guru and you require the Shastras, but you need to have love for both equally. You cannot only be interested in the subject, or you cannot only be interested in the guru. If you're only interested in the guru, then also you can't be spiritual. So you have to be equally interested in the guru as well as in the subject called spirituality. Because what is guru? Guru lives spirituality. Guru never ever suffers. He never suffers. Because he is Gurmukh, he himself is also a Gurmukh. And he is as much wedded to the ancient wisdom of life, which is called Shastra, which is called scriptures. Religious people continue to suffer and they will continue to call themselves good and bad. Religion is nothing to do with spirituality. Religion is blind fanaticism. The Krishna alone is God and everybody should become a Hindu. It's politics. Jesus alone is God and everybody should become a Christian. It's politics. And we blame Muslims the most because they convert people by violence. At least Christians are not converting people by violence. They are looking after people and they say, come, why don't you also become a Christian? They are opening schools, they are opening hospitals, universities, and they in various which ways. But all said and done, it's all politics. How does it matter you are a Christian or a Hindu or a Sikh? आपकी बात होनी चाहिए. जो स्पिरिचुअल आदमी है वो कोई हिंदू मुस्लिम सिख नहीं होता. तो वो क्या होता है फिर? He spirit. Spirit can never suffer. Spirit is always intoxication. It's intoxicated. Spirit is always intoxication. तभी तो बोतल में बंद करके आपको पिलाते हैं. मगर वो बोतल वाली स्पिरिट से तो लिवर खराब होगा, किडनीज खराब होंगी, दिमाग खराब होगा, घर बार टूट जाएंगे. मगर जो असली स्पिरिट है, अगर उसको पी लोगे तो फिर तो नानक नाम चढ़दी कला. चढ़दी कला का मतलब क्या है? आप नशे में ही रहोगे हमेशा. नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात. सो वो स्पिरिचुअलिटी. सो डोंट blame good or bad for suffering and flourishing. It's your definitions. What is flourishing? Making money is flourishing. You make money, who's stopping you? If you think, if I say सब किछु कर में बाहर नाही, and सब किछु का मतलब क्या है? आप समझे सब किछु कर में, इस कर में सब कुछ है. नहीं, इस कर में सब कुछ है. What do you mean सब कुछ? इसके अंदर कोई बिल्डिंग्स हैं? इसके अंदर कोई हीरे जवाहरात हैं? नहीं. So then what is सब कुछ? सब कुछ मीन्स इंटॉक्सिकेशन है, आनंद है, क्लैरिटी है, कोई सफरिंग नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है, आंसर्स ही आंसर्स. जिसको देख के लगता है कि तू ऐसा कैसे है, तेरे लिए सब कुछ इतना आसान कैसे है, हाउ आर यू द वे यू आर. दैट इज स्पिरिचुअलिटी. जो स्पिरिचुअल है, गुरु नानक है, ही वुड से दुखिया सब संसार. वो नहीं कहेंगे कि गुड पीपल आर सफरिंग. इसे एवरीबडी सफरिंग. आपकी डेफिनेशन है कि जिसके पास पैसे ज्यादा है वो सफरिंग नहीं है. वो ज्यादा सफरिंग होगा. बट एनीवे, ज्यादा और कम की बात ही ना करें. एवरीबडी इज सफरिंग. The very subject of wisdom or scriptures or shastra is standing on a foundation which is called why is there suffering. That's where spirituality begins.
And a guru knows this subject very well. And not only the grammar of this subject, he lives this subject. Because he's transcended suffering. मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, एक चित्त होता है. चित्त के बियॉन्ड जब तक आप नहीं चले जाते, तब तक सफरिंग होगी. होगी, डेफिनेटली होगी. मगर चित्त मतलब दिल, चित्त को गुरु चरणों में लगा दोगे तो ये जिंदगी जो है, इट विल बिकम अ स्वीट ड्रीम. बट इट इज अ ड्रीम. इट विल बिकम अ स्वीट ड्रीम. गुरु चरणों में लगा दोगे प्रेम से. प्रेम से यू बिलोंग टू द गुरु, यू बिलोंग टू राम, यू बिलोंग टू श्री कृष्ण. सारा दिन आपकी हृदय से वाहे गुरु निकल रहा है, वाहे गुरु निकल रहा है. तो ये जिंदगी जो है, इसमें semblance ऑफ हैप्पीनेस आ जाएगी. आई सेड semblance, आई डिड नॉट से हैप्पीनेस. semblance ऑफ हैप्पीनेस. एंड धीरे 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 अगर आप वेरी सीरियस अबाउट दिस सब्जेक्ट, मुझे सफरिंग से निकल के वहां ही पहुंच जाना है जहां गुरु रहता है, तो आप भी पहुंच जाएंगे. फिर आप चित्त वृत्तियों से परे होंगे. फिर आप बीमार नहीं हो सकते, फिर आप मर भी नहीं सकते, फिर आप बूढ़े नहीं हो सकते. दैट स्टेट इज कॉल्ड योगा. फिर आप और गुरु एक हो चुके होंगे, फिर आप दो ना रह जाएंगे, मिल चुके होंगे. गुरु इज अ योग मूर्ति. गुरु इज नॉट अ सब्जेक्ट कॉल्ड योगा. गुरु इज अ योग मूर्ति. मतलब उसमें योग हो चुका है. योग हो चुका है. वो योगी राज है, वो साधक नहीं है. साधक भी आपकी हेल्प कर सकता है, कि साधक भी आपका हाथ पकड़ के, थोड़ा वो भी आगे जा रहा है तो आपको भी हाथ पकड़ के आगे एक रास्ते पे तो दिखा सकता है आपको. मगर जो योगी राज है, वो बता सकता है कि योग होता क्या है. वो हमेशा खिला हुआ है. ही इज स्पॉन्टेनियस, ही इज चाइल्ड, ही इज ऑलवेज हैप्पी. एंड ही इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. वो कोई गुड और बैड में बिलीव नहीं करता. ही इज एब्सोल्युटली अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. उसको कोई नॉन वेज बुरा नहीं लगता, उसको कोई विस्की बुरी नहीं लगती. पर वो नहीं पीता, ठीक है, उसको जरूरत नहीं है. उसको नॉन वेज पता है उसको कि मेडिकली नॉट हेल्दी, नहीं लेता. मगर पाप नहीं है कि मैंने चिकन खा लिया, तो कोई पाप नहीं है, खा लो. सो ये पाप पुण्य में नहीं फंसा हुआ. बुद्धि युक्तो मतलब जो योगी हो चुका है, जहाति इह सुकृत दुष्कृत. वो ये दोनों के, अच्छा काम है या बुरा काम है, इस सबसे बाहर है वो. स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग टू डू विद गुरुद्वारे जाना है कि मंदिर जाना है, और जाना है कि नहीं जाना, और कितनी बार जाना है, और बाणी कितनी बार पढ़नी है. ही इज आउट ऑफ ऑल दिस. वो श्लोक भी बोलता है तो ऐसे ही मन में आ जाता है तो बोल देता है, उसको कोई श्लोक याद नहीं करने. स्पिरिचुअलिटी श्लोकों का नाम नहीं है. स्पिरिचुअलिटी इज एन एवर प्रेजेंट क्लैरिटी एंड हैप्पीनेस. जो स्पिरिचुअल हो जाएगा या स्पिरिचुअलिटी को सीखने की कोशिश कर रहा होगा, वो सफर नहीं करेगा. जो अपने ही इमेजिनरी गुड एंड बैड में फंसा हुआ होगा, व्हाई आर गुड पीपल सफरिंग, स्टूपिडिटी सफरिंग, नॉट गुड पीपल सफरिंग. ओके, सो stop without studying. Don't keep declaring that life is a mystery. ये लाइफ के एक सब्जेक्ट बना है ना, उसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं. उसको आपने कभी पढ़ा ही नहीं, और आप बोलते रहते हो सारी जिंदगी. पूरे साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग सारी उम्र यही बोलते रहेंगे, मर जाएंगे, कि लाइफ इज अ मिस्ट्री. यू नेवर ट्राई टू स्टडी इट. यू विल कीप डिक्लेयरिंग. फ्रेंच तो कोई सीख ही नहीं सकता. सीखने की कोशिश तो करो. क्यों, जब सारी दुनिया वो फ्रांस में जो रहती है वो फ्रेंच बोलती, तो आप क्यों नहीं बोल सकते.
Spirituality is not an ununderstandable subject. It is not anything complex. It is pure love. और लव करना तो सबको आता है ना. सो उसी लव को आप थोड़ा बड़ा कर दो. गिव इट अ बिगर डायमेंशन. स्टार्ट लविंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग. Begin it from Guru and then spread it all over. Spread it all over. Love your Ishwar. तो Nietzsche, German philosopher, will tell you God is dead. कोई गॉड वॉड है नहीं है, आपकी इमेजिनेशन है. क्योंकि आप प्यार तो करते ही नहीं. आप ऐसे ही बोलते रहते वाहिगुरु 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 वाहिगुरु. कौन सा वाहिगुरु? तुम्हारे अंदर तो कोई प्रेम ही नहीं है. जब आप प्रेम से वाहिगुरु बोलोगे तो बात बन जाएगी. प्रेम से हरे कृष्णा बोलोगे तो बात बननी शुरू हो जाएगी. आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा. फिर ऐसे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे कि व्हाई इज देयर सफरिंग, व्हाई गुड पीपल सफर. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा. सीखने की कोशिश करो कि गुड होता क्या है. जितना आप स्पिरिट के पास जाते जाएंगे उतना आप गुड हो जाएंगे. लवफुल, रिस्पेक्टफुल, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं. अच्छा भी आदमी अच्छा ही है, बुरा आदमी भी अच्छा ही है, सब कुछ ठीक है. फॉर हिम एवरीथिंग इज फाइन. फॉर हिम a plumber is as good as an electrician, and electrician is as good as a doctor, as a doctor is as good as a teacher. ये कोई फर्क नहीं पड़ता. these are only livelihoods. पैसे तो कमाने ही हैं, अपने आप को जिंदा तो रखना है ना. कोई ना कोई काम तो करोगे ही. उसके लिए हाउसवाइफ इज द बैकबोन ऑफ दिस यूनिवर्स. नहीं तो हम कहते हैं, पूछते हैं आप क्या काम करते हैं, नहीं जी कुछ नहीं, आई एम हाउसवाइफ. उसको तो प्रणाम ही करना चाहिए दोनों तरह से. एक तो भाई तुम तो आधार हो इस सृष्टि का. दूसरा प्रणाम इसलिए कि तुम कहते हो नहीं कुछ नहीं जी, मैं कोई काम नहीं करता, तो हाउसवाइफ. अभी इससे ज्यादा इग्नोरेंस और स्टुपिडिटी क्या हो सकती. क्या आप अपने आप को पहचानते नहीं हो? क्या आप क्या हो? यू आर होम मेकर. किसी को पूछो क्या हो जी, कुछ नहीं, हरिजन हो जी, मैं तो लोअर क्लास. वो हरिजन हो तुम, लोअर क्लास कैसे हो गए? तुम तो सारी सृष्टि का क्राउन हो, भक्त हो, हरि के जन हो. मगर हम तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही सोचते हैं. Isn't it? सो ये गुड बैड बोलना बंद करो. अपने आप को ऐसे ही लेबल मत कर लो गुड. आई मीन लेट मी कन्फेस इट एंड टेल यू बोल्डली, आई एम नॉट अ गुड पर्सन. आई एम जस्ट अ रेगुलर मैन who just about does everything. I earn money also, and I breathe also, I eat also, I go out to entertain myself also. So, ऐसा मत क्वेश्चंस पूछो why do good people suffer. Everybody is suffering. जिसको आप फ्लरिशिंग बोल रहे हो वो भी सफरिंग है. क्योंकि जब तक आप इस बॉडी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करोगे तब तक आपको बूढ़े भी होना पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा. एंड अविद्या क्या होती है? अविद्या, ignorance, stupidity. अविद्या मीन्स अज्ञान. अज्ञान मीन्स stupidity. क्या होती है डेफिनेशन? आई मीन आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज द डेफिनेशन. अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु. जो चीज पेरिशेबल है, हर वक्त बदलती जा रही है, जैसे कि आपका मन है, हर वक्त बदलता रहता है. अशुचि जो क्लीन नहीं है, फ्लैश एंड बोन्स हैं. मतलब क्लीन तो नहीं हो सकते ना फ्लैश एंड बोन्स. सो अनित्य है, अशुचि है, दुख है. ये दुख ही तो है ये बॉडी. क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ इसके साथ हो रहा है. क्लाइमेट इज प्लेइंग विद इट. अनात्मसु, और जो मैं नहीं हूं उसको आप नित्य समझना शुरू कर देते हैं. साफ सुथरा समझना शुरू कर देते हैं. शुचि.
सुख समझना शुरू कर। आत्म ख्यातिर, इस पे ऊपर आप कितना बड़ा एक क्राउन डाल देते हो राजा का, क्या कि ये मैं हूं। अगर ये मैं हूं तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, और अगर ये मैं हूं तो फिर तो मुझे मूर्ख को मरना ही पड़ेगा। सो गुड क्या होता है? जो अपने आप को पहचान लेता है कि मैं कौन। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। सिख तो ये आदमी बन सकता है, हिंदू तो ये आदमी बन सकता है, क्रिश्चियन ये आदमी बन सकता है। मैं तो कोई हिंदू मुस्लिम सिख, मैं तो ह्यूमन भी नहीं हूं। मैं तो मैं हूं। जब आप हैं तो तथा द्रष्टु स्वरूप स्थानम, फिर तो आप भगवान हैं। भगवान थोड़ा कभी सफर कर सकता, मगर जो कुछ मैं बता रहा हूं ये एकेडमिक्स है। ये आपका जब अपना एक्सपीरियंस होगा इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करते करते, गुरुमुख होते होते, जब तक ये सब्जेक्ट समझ नहीं आता, तब तक बी इन लव विद योर गुरु, बी इन लव विद योर ईश्वर। उसको ईश्वर मानो। गुरु ईश्वर, गुरु गोरख ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई। फिर डिफरेंस मत समझो कि पार्वती कौन है और सरस्वती कौन है, और सीता कौन है और राधा कौन है। ये सब तो स्टोरी है। गुरु ईश्वर मतलब शिव जी भी गुरु, गोरख विष्णु भी गुरु, ब्रह्मा भी गुरु, गुरु पार्वती माई। जे हूँ जाना आखा नाही, कहना कथन ना आई जाई। जे मैं जानता हूं ये सब कुछ, पर बोलने से क्या फायदा, बिकॉज दैट्स एकेडमिक्स। बोलने से कोई फायदा नहीं। ये तो आपका अपना एक्सपीरियंस होगा, बाय एंड बाय। मैं अक्सर कह दिया करता हूं कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं ये तो झूठ है। नहीं, उसको भी समझ लीजिए आप कि झूठ कैसे हो सकता है। ईशा उपनिषद आपको बताएगा कि पूर्णम अदाह पूर्णम इदम, पूर्णात पूर्णम उदच्यते। हरे कृष्णा। अगर सूर्य कहे कि मेरी जो लाइट है वो तो झूठ है, सचमुच में तो मेरे अंदर जो योग हो रहा है ना, वहां से लाइट निकल रही है। ये सच तो योग ही है। मगर सच से जो चीज निकलती है वो झूठ कैसे हो सकती है? सच में से तो सच ही निकल सकता है। प्रेम में से जो चीज निकलती है वो प्रेम ही हो सकती है, वो कुछ और कैसे हो सकती? सो डाइजेस्ट दिस स्टेटमेंट ऑल्सो, कि जो कुछ दिख रहा है वो झूठ है। अरे नहीं, क्यों, कैसे झूठ हो सकता है? जब निकला सच से है तो झूठ कैसे हो सकता? सच से सच ही निकला करता है। सो जो ये संसार है, ये सच की कोठड़ी, ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। ये विश्व संसार जो तुम देख दे हरि का रूप है। अपने आप को अच्छा या बुरा कहना बंद करो, बोलो मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं सचखंड में वास करता हूं, मैं स्वर्ग में हूं। किस फ्यूचर की वेट कर रहे हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या नर्क जाऊंगा? आप या तो नर्क में रह रहे हैं या तो स्वर्ग में रह रहे हैं। कल क्यों, आज ही क्यों नहीं? या तो आप नर्क में हैं, सफरिंग सफरिंग सफरिंग, क्यों नहीं स्वर्ग में आ जाते? क्यों नहीं मेरे जैसे बन जाते? मगर कैसे बनोगे मेरे जैसे? मेरे जैसे बन जाओगे जब प्यार तुम्हें हो जाएगा, अदरवाइज तो नहीं बन सकते। और प्यार कैसे होगा? सबसे पहले फैसिनेशन होगी। सो दर तेरा केहा, सो कर केहा जित में सर्व संभाले। तो चीज क्या है? तू ऐसा कैसे है?
तेरे साथ सब कुछ इतना आसान कैसे? तू हवा के जैसे घुल जाता है मुझ में। मुझको अपना घर मिल जाता है तुझ में। जब तक ये नहीं होगा, जब तक मैं आदमी रहूंगा, तब आपके साथ मिल कैसे सकता हूं? जब मैं हवा हो जाऊंगा तो तुम भी हवा हो, हम एक हो जाएंगे। Isn't it? सो स्पिरिचुअलिटी को ग्रास्प करो एज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट। आई मीन, anybody who has grasped it has been a Gurmukh ever from the beginning of time. He has loved his Guru so much and the subject so much that finally he has become the subject. चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो गुरु अंगद हो, चाहे वो गुरु अर्जन हो, चाहे वो जीसस हो, कोई भी आदमी, उसको पता चल जाता है जब वो गुरमुख होता है, that I am a chosen one, I am a selected one. अभी मुझे कौन बचाए? कौन बचाए मतलब अब तो मैं जहां पहुंचना चाहता हूं वहां पहुंच ही जाऊंगा। क्योंकि यही तो दो चीजें चाहिए थी, एक तो आपका इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, एक इंटरेस्ट इन द गुरु। जब तक गुरु आपका ईश्वर नहीं है, तब तक आप गुरुमुख नहीं। ईश्वर मतलब आपका बिलवेड, इष्ट। सो अभी जान लीजिए, वाई आर यू सफरिंग? द होल वर्ल्ड इज सफरिंग। हरे राम। जब आप के साथ ये सब कुछ हो जाएगा, तो मेरे जैसे बन जाओगे, मतलब यू विल बिकम रिस्पेक्टफुल टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। रिस्पेक्टफुल ही बिगिनिंग ऑफ लव है। फिर आप नाराज वराज नहीं हो सकते कभी किसी से। हाथ जुड़े रहेंगे, मुख पे एक मृदु सी स्माइल होगी, मंद सी मुस्कुराहट होगी। कोई जीत हार ना होगी, कोई ऊंचा नीचा ना होगा, कोई अच्छा बुरा ना होगा। ऐसा हो जाएगा, फिर आप ना बच्चे रह जाएंगे, ना बड़े बूढ़े हो जाएंगे, ना आप आदमी रह जाएंगे, ना औरत रह जाएंगे। ऐसा हो जाएगा कि उसके लिए अभी तैयार हो। अभी तो नहीं ना। सो अभी इतना ही करो, हैव अ गुरु, हैव एन ईश्वर, उससे प्रेम करो। करते करते साथ साथ में शास्त्रों पे विचार करो। किताब भी जरूर होनी चाहिए। हरे कृष्णा, हरे राम, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे कृष्ण।